Good morning, student. Today I am starting new chapter ratio and proportion. It is very good chapter. Solution very carefully. Ratio. In the previous class, you have learned that two quantities of the same kind can be compared by a relation known as ratio. Two quantities of the same kind can be compared by a relation known as ratio. The ratio of two quantities A and B in fraction A upon B, we can write if the quantities are of the same kind and are measured using the same unit. Remember that the ratio of two quantities of different kind, length and time is meaningless. अगर हम दो चीज़ का रेशो देख रहे हैं तो सेम काइंड की होनी चाहिए, अलग अलग काइंड की नहीं होनी चाहिए. आल्सो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट. अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट की बात होनी चाहिए. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट टू बॉयज़. Suppose one boy's weight is 25 kg and second boy's weight is 50 kg. So we are talking about their weight. एक बच्चे का वेट 25 kg, दूसरे का 50 kg. एक्चुअल वेट 25 kg एंड 50 kg. एक हेल्दी है थोड़ा सा, एक थोड़ा कमज़ोर है. तो वेट ऑफ फर्स्ट बॉय इज 25 kg एंड वेट ऑफ सेकंड बॉय इज 50 kg. इफ बी say that ratio of both boy of weight, we can say 25:50. If we reduce 25:50, then our answer come 1:1:2. It means if weight of one boy is 1, then weight of second boy is 2 kg. So in this way we can say ratio like this. This is A boy, this is B. Its weight is 25 kg and its weight is 50 kg. The actual ratio is 25:50. 25 kg ratio 50 kg. But after reducing, it comes 1, 25 1 25, 25 2 50. So 1:2. So the ratio of both boy is 1:2. अगर पहले बच्चे का वजन 1 किलोग्राम का है तो दूसरे का क्या है, 2 है. तो in this way we can say this is called ratio. The ratio of A and B for that of A to B is expressed as A:B. Read as A to B. The ratio of A and B or that of A to B is expressed as A:B. अगर A और B का रेशो है तो उसको हम A:B ऐसे लिखते हैं. पढ़ते क्या है, as A to B. A and B are called the terms of the ratio. A को फर्स्ट टर्म, B को सेकेंड टर्म कहेंगे. Here A is फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का दूसरा नाम क्या है, एंटीसीडेंट. फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं. एंड बी इज द सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट, और सेकेंड टर्म को हम कंसिक्वेंट भी कहते हैं. द रेशियो ऑफ 30:50 इज गिवन बाई 30:50. 30/50, 0 से 0 कट, 3:5. 3/5 इज इक्वल 3:5. Now come to the compound ratio. A ratio is called the compound ratio of two or more given ratio when its antecedent is the product of the antecedent of the given ratio and its consequent is the product of the consequent of the given ratio. Thus the compound ratio of the ratio A:B and C:D is the ratio AC:BD. एग्जाम्पल, द कंपाउंड रेशो. दो रेशो हैं, 2:3 और एक 5:7. इफ वी वांट टू फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ बोथ रेशो, देन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 7. पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से. 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, और दूसरे को दूसरे से किया तो 21 आया. तो 10:21. अगर दो अलग अलग रेशो दिए गए हैं, एक ये और एक ये, अगर हमें इनका कंपाउंड रेशो, वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड रेशो, देन व्हाट आई डू, 2 इस रेशो का पहला क्या है 2, इस रेशो का पहला 5. तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो 21. तो 10:21 इज द कंपाउंड रेशो ऑफ बोथ द रेशो. इन दोनों रेशो का जो कंपाउंड रेशो है 10:21 है. नाउ कंटिन्यूड रेशो. इफ 3 क्वांटिटीज वी सच दैट, 3 क्वांटिटी है, रेशो ऑफ द फर्स्ट 2 क्वांटिटीज इज A:B and the ratio of the last 2 quantity is B:C, then we
say that the three quantities are in the continued ratio A ratio B C. अगर तीन नंबर हैं A B C, if they are in continued ratio if A ratio B is equal to B ratio C. If A ratio B is equal to not equal to B ratio C, मतलब B जो है सेम होना चाहिए. Let A ratio A B and C such that A ratio B 9 ratio 14 and B ratio C is equal to 14 ratio. तो यहाँ B की जगह क्या है 14 और यहाँ B की जगह क्या है 14. तो A ratio B ratio C is called 9 ratio 14 ratio 19. Then A B and C are in continuous relation. दो रेशो हैं, एक A रेशो B है, उसकी वैल्यू है 9 रेशो 14. दूसरा है B रेशो C, उसकी वैल्यू है 14 रेशो 19. यहाँ B की जगह 14 है, A की जगह 9 है, और यहाँ B की जगह 14 है और C की जगह 19 है. तो B की वैल्यू यहाँ भी 14 है और इसमें भी 14 है. सो A B C आर इन कंटिन्यूड रेशो. Now come to the exercise 1A of ratio and proportion. Express the following ratio in the simplest form. There are four questions in this. First of all, I am solving first question 105 ratio 231. So how we solve it? 105 upon 231. After reducing, our answer comes 5 upon 11. We can say 5 upon 11, 5 ratio 11. Similarly, first का fourth 8 whole 7 upon 9 ratio 11 whole 2 upon 7. First of all, we simplify both. Then it comes 79 upon 9. 9 8 is 72. 72 plus 7, 79 upon 9. 7 11 is 77. 77 plus 2, 79 upon 7. Now we have to what? This upon this. Like this upon this. Same this upon this. मतलब इसको इससे डिवाइड करना है. 79 upon 9 डिवाइड बाई 79 upon 7. 79 upon 9 into 7 upon 79. 79 cut by 79. तो हमारा आंसर कम 7 upon 9 और 7 ratio 9. Now come to the question number 2. Express each of the following ratio are in the simplest form. You see all four questions. They are in same unit. पैसा रुपीस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बस सेम यूनिट में है, तभी हम रेशो निकालते हैं. केजी ग्राम, मीटर सेंटीमीटर. फोर्थ वाला मिनट सेकंड दोनों वी हैव टू चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. फर्स्ट क्वेश्चन 14 मीटर टू 7 मीटर 35 सेंटीमीटर. वी चेंज इन सेंटीमीटर because is 7 meters 35 centimeter. So first of all we change in centimeter. This is 1400 centimeter to 7 meter 700 plus 35 735 centimeter. Now both are in same unit centimeter. Now what we have to change in simplest form. तो इतने upon इतने 1400 upon 735. After reducing our answer come 40 upon 21 or 40 ratio 21. So it is the simplest form of 14 meter to 7 meter 35 centimeter. Similarly 3 minute 10 second to 1 minute 40 second. 3 minute 10 second means 190 second. 3 minute 1 minute में 60 second, तो 3 minute में 180 plus 10 190 second. 1 minute में 60 second plus 40 so 100 second. Now second अब हम इसका रेशो निकालेंगे 190 अपॉन 100. 0 से 0 कट 19 अपॉन 10 और 19 रेशो 10. थर्ड क्वेश्चन ए मैन अर्न 90,000 ए ईयर एंड स्पेंड 75,600 ए ईयर. एक आदमी साल में इतना रुपया कमाता है, खर्च इतना करता है. फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू द एक्सपेंडिचर एंड हिज सेविंग टू इनकम. इनकम टोटल इनकम 90,000, स्पेंड इतना, तो एक्सपेंड को एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है. एक्सपेंडिचर इतना खर्च करता है, इतना कमाता है, तो सेविंग क्या होगी इतने माइनस इतने इज इक्वल टू 14,400. फर्स्ट पार्ट रेशो किसका निकालना है, इनकम रेशो एक्सपेंडिचर. व्हाट इज इनकम 90,000, एक्सपेंडिचर 75,600. तो इसका रेशो निकालना है, तो इतने अपॉन इतने ये आया 25 अपॉन 21 और 25 रेशो. सेकेंड पार्ट में निकालना है सेविंग रेशो इनकम. हाउ मच सेविंग 14,400 रेशो 90,000. इसको सॉल्व किया तो आया 4 रेशो 25. क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन डू योर सेल्फ. आई एम रीडिंग 2 न्यू कार वर वैल्यूड एट रुपीज इतने एंड इतने. दो नई कार हैं, उनका एक की प्राइस इतना है 3,96,000, दूसरे का 5.
96,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद उनकी मार्केट वैल्यू 96,000 कम हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इन द बिगिनिंग एंड द 6 मंथ लेटर। तो शुरू में, फर्स्ट पार्ट में शुरू में रेशियो निकालना है, तो शुरू में फर्स्ट कार का प्राइस इतना है, सेकंड का इतना है, तो इतने अपॉन इतने कर लेना है। और सेकंड में पूछा है आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ के बाद इसका भी प्राइस 96,000 घट गया और इसका भी घट गया, तो आफ्टर 6 मंथ इसका प्राइस हो जाएगा 3 लाख और इसका हो जाएगा 5 लाख, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख, तो उसका रेशो निकल जाएगा। यू कैन डू इट इजिली। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बेबी गर्ल स्लीप 12 होल 1/2 आवर एवरी डे। एक बच्चा है वो इतने घंटे डेली सोता है। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम सी इज अवेक टू द टाइम सी इज स्लीप। कितने घंटे वो जगता है और कितने घंटे वो सोता है, उसका रेशो निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, स्लीपिंग आवर 12 होल 1/2, आफ्टर सिंप्लीफाइंग 25/2 आवर। अवेकनिंग आवर, कितने घंटे वो जगता है, तो टोटल 24 होता है, 24 में से दिस माइनस किया 25/2, आवर आंसर कम 23/2 आवर्स। इतने घंटे वो जागता है, इतने घंटे वो सोता है, तो इसको रेशो निकालना है। अवेक स्लीप, इसका और इसका रेशो निकालना है, तो 23/2 रेशो 25/2। हाउ वी डू इट, इतने अपॉन इतने या इतने डिवाइड बाई इतने, 23/2 डिवाइड बाई 25/2। आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 23/25। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द नंबर 915 into 2 पार्ट्स इन द रेशो 3/5। एक नंबर है 952, इसको 2 पार्ट्स में 3/5 के रेशो में डिवाइड करना है। हाउ वी डू इट, नंबर है हमारा 952, इसको डिवाइड करना है 3/5 में, रेशो है 3/5, तो सम ऑफ रेशो 3 + 5, इन दोनों का सम किया 3 + 5 = 8। सो फर्स्ट रेशो क्या है 3/8 सम, जो फर्स्ट पार्ट है वो 3 है और उसका सम क्या है 8, तो 3/8 इंटू 952। आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट आया 357 एंड सेकंड रेशो 5 है, तो 5 सम ऑफ रेशो इंटू दिस, आइए दैट इज योर सेकंड पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। 950 को 2 को 2 पार्ट में बांटा है, तो एक पार्ट ये आएगा और एक पार्ट ये आएगा। इसका रेशो क्या है 3/5। क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन लीव ₹1,85,378 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज सन एंड डॉटर इन द रेशो दिस, फाइंड द अमाउंट ईच रिसीव। एक आदमी के पास इतना रुपया है, वो उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो बेटे को कितना मिलेगा और बेटी को कितना मिलेगा। टोटल मनी दिस रेशो इतना, रेशो इतना, पहले सिंप्लीफाई किया तो इतने रेशो इतना आया। अब ये रेशो जो है अपॉन में, फ्रैक्शन में है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिनिश देयर इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो व्हाट आई डू, हियर डिनोमिनेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 5, सो वी टेक एलसीएम 15, 3 5 जो 15, 5 17 जो 85, 5 3 जो 15, 3 11 जो 33। तो अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया 15, तो 80, इसको हम कह सकते हैं 85/33। जो रेशो हमारा गिवन था, इसको हमने चेंज करते करते हम ये आ गया 85/33। अब हमको इसको लेना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट चेंज इनटू दिस रेशो। ये जो रेशो था ये चेंज होकर ये हो गया, एंड दैट इज सिंपल। सम ऑफ रेशो 85 + 33 = 118। तो सन का रेशो क्या है 85, पहला सन है, तो 85 अपॉन सम ऑफ both 118 into this, solving our answer come this 1,33,535 रुपये। डाटर का रेशो 33 है, तो 33 अपॉन दिस इंटू टोटल सम ऑफ मनी, आफ्टर रिड्यूसिंग आवर आंसर कम 51,843 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, distribute 45 chocolate between Madhu and Pradeep in the ratio 1/4/1/6, like same as question number 7, but I am solving it. Total chocolate 45, ratio 1/4/1/6. First of all we finish their fraction. What we do, we take LCM 12, 4 3 are 12, 3 1 are 3, 6 2 are 12, 2 1 are 2, so this ratio come 3/2. So this ratio which are in the shape of fraction change into like this 3/2.
तो सम ऑफ रेशो 3 + 2 = 5. तो Madhu got 3 upon sum of their 5 into 45, so 27 chocolates. Pradeep got 2 upon 5 into 45 = 80 chocolate. Ninth का first, a man's property rupees 2 lakh was divided between his wife and son such that his wife get thrice as his son. Find his wife's share. एक आदमी है, उसके पास 2 लाख की प्रॉपर्टी है, उस पैसे को वाइफ में और बेटे में बांटा जाता है, पर वाइफ का जो हिस्सा है, वाइफ का जो शेयर है, वो बेटे से 3 गुना है। तो टोटल प्रॉपर्टी 2 लाख, लेट द सन शेयर बी एक्स, बेटे को मान लीजिए एक्स मिलता है, तो वाइफ का शेयर क्या होगा 3x। तो रेशो ऑफ सन एंड वाइफ x/3x और x/3x, x से x कटा 1/3 और 1/3। तो बेटे का और वाइफ का शेयर क्या है 1/3। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 1 + 3 = 4। तो वाइफ शेयर, तो वाइफ का रेशो क्या है 3/4 इंटू 2 लाख। आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 1,50,000। इट मीन्स वाइफ शेयर, वाइफ का जो शेयर है 1,50,000 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, डिवाइड रुपीज़ 300 इंटू 2 पार्ट्स दैट वन इज द 2/3 ऑफ द अदर। सेम यू डू लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 10, 2 नंबर आर इन द रेशो 4/5 एंड देयर सम इज 180, फाइंड द नंबर। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, यू कैन डू इजीली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, ए नंबर इज डिवाइडेड इन द रेशो 15/8। एक नंबर है, उसको हमने 50/8 में डिवाइड किया। इफ द सेकंड पार्ट इज 56, फाइंड द नंबर। अगर सेकंड पार्ट 56 है तो वो नंबर बताना है जिसका रेशो 15/8 है। तो रेशो 15/8, सेकंड पार्ट 56, लेट द नंबर बी x। सो सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, सेकंड रेशो क्या है 8 अपॉन, इन दोनों का सम क्या होगा 23। तो 8/23 इंटू एक्स। बट सेकंड पार्ट इज गिवन हियर 56, तो इन प्लेस ऑफ सेकंड पार्ट यू राइट 56 इज इक्वल टू 8/23 इंटू एक्स। 8/23 go that side. After solving our answer come x is equal to 161। तो वो नंबर क्या है, लेट जो हमने नंबर किया था लेट x, तो वो नंबर क्या है 161, जिसमें से कि सेकंड पार्ट क्या है 56, सेकंड पार्ट क्या है 60, बट वी हैव टू कैलकुलेट नेट नंबर, तो दैट इज नंबर इज 161। Similarly, question number 12, a number is divided in the ratio 9/11. If the first part is 72, find the number. So you can find same question number 11. The ratio of the number of rose plant to the sunflower plant are in the garden is 3/5. एक गार्डन में सनफ्लावर है और रोज फ्लावर है, तो रोज फ्लावर और सनफ्लावर का जो रेशो है 3/5 है। इफ देर आर 25 सनफ्लावर, एक्चुअल जो सनफ्लावर है उस गार्डन में देर आर 25 सनफ्लावर, फाइंड द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स। तो रेशो ऑफ रोज टू सनफ्लावर 30/5, टोटल सनफ्लावर प्लांट्स 25 गिवन। तो लेट द टोटल फ्लावर इज इक्वल टू एक्स। हमने माना कि टोटल फ्लावर क्या है एक्स है। तो सनफ्लावर प्लांट इज इक्वल टू, सनफ्लावर का रेशो क्या है 5, तो 5/8, इनका दोनों का सम क्या है 8 इंटू एक्स। बट सनफ्लावर का जो प्लांट है उनकी एक्चुअल दिया है 25। तो इन प्लेस ऑफ सनफ्लावर प्लांट वी राइट 25 हियर इक्वल टू 5/8 इंटू एक्स। 5/8 go that side, तो x is equal to 40। इट मीन्स देयर आर 40 फ्लावर प्लांट इन दैट गार्डन, जिसमें से कि 25 फ्लावर प्लांट जो हैं वो सनफ्लावर के हैं, और बाकी किसके हैं रोज प्लांट इज इक्वल टू 41 is 25 इज इक्वल टू 15 प्लांट ऑफ रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शशि एज रेशो अरविंद एज। शशि और अरविंद की एज का रेशो 3/4 है। इफ अरविंद एक्चुअल एज इज 28 years old, फाइंड शशि एज। तो शशि एज और अरविंद एज का रेशो 3/4, एक्चुअल अरविंद एज क्या है 28, लेट द एक्चुअल शशि एज इक्वल टू एक्स। तो एक्चुअल एज शशि की x है और अरविंद की 28 है, और उन दोनों का रेशो 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/28 इज इक्वल टू 3/4। x/28 का मतलब x/28 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 4 इज इक्वल टू दिस, 4 गो दैट साइड, आवर आंसर कम 21। इट मीन्स द एक्चुअल एज ऑफ शशि इज 21 years old। क्वेश्चन नंबर
15. Which ratio is greater in each pair of the ratio given below? There are 3 questions. इसमें बताना है कि कौन सा रेशो बड़ा है. Suppose first question 6:11 and 4:9. We have to tell कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है. 6:11 का मतलब 6/11, 4:9 का मतलब 4/9. But denominator are not same, so we take LCM. 11 और 9 का LCM 99. 11 9 जा 99, 9 6 जा 54. 9 11 जा 99, 11 4 जा 44. So here 54, 44. 54 is greater than 44. So 6/11 is greater than 4/9, or we can say 6:11 is greater than 4:9. Similarly, second part, 2 whole 1/2 ratio 1/3 and 17:2. So first of all we simplify 5/2 ratio 1/3 and 17:2. It is in general form, but it is not general form. So what we do? We finish in fraction. So we take LCM, 2 और 3 का LCM 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2. Now this fraction ratio change in 15:2. So it may be change in 15:2 and 17:2. Now we have to declare that which is greater. Its meaning is 15/2 and its meaning is 17/2. Denominator are same, so we have not to take LCM because denominator are same. So now we decide which is greater. So 17 is greater, so 17/2 is greater than 15/2. It means 17:2 is greater than this ratio. Now come to the question number 16. Which of the following ratio is the greater? There are 3 ratio, 2:3, 4/5:1, 3/2:2. इनमें तीनों में बताना है सबसे बड़ा कौन सा है. फर्स्ट 2:3, सेकंड 4/5:1 एंड 3/2:2. ये तो जनरल फॉर्म में है, बट इट इज नॉट जनरल फॉर्म. इट इज नॉट जनरल फॉर्म मतलब ये फ्रैक्शन में है, तो उसको ऐसे करना है. तो 4/5:1, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसको करेंगे 5 से, तो 5 से 5 कट 4 आएगा, और इसको 5 से करेंगे तो 5 आएगा. इसमें डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो उसको 2 से करेंगे 3 आएगा, उसको करेंगे तो 4 आएगा. तो अब ये तो पहले से ही चेंज था, ये चेंज हो गया, ये हो गया, और ये चेंज हो गया, ये हो गया. अब हमें डिसाइड करना है कि ये इन तीनों में कौन सा बड़ा है. विच इज ग्रेटर देन इन ऑल 3. इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2:3? 2/3. इसका मतलब 4/5. इसका मतलब 3/4. वी टेक एलसीएम 3 5 4 60. 3 20 जा 22 जा 40. 5 12 जा 12 4 जा 48. 4 15 जा 15 3 जा 45. यहाँ 40 है, 48 45. तो सबसे बड़ा क्या है? 48. सो दिस रेशो इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस. इन तीनों में सबसे बड़ा ये रेशो है, 4/5 रेशो 1. क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ दिस एंड दिस. देयर आर 2 पार्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट, 5:6 एंड 2:3. इनका कंपाउंड रेशो. तो व्हेन आई टेल यू बेसिक थिंग, देन आई टेल यू इफ यू हैव टू फाइंड कंपाउंड रेशो, देन पहले को पहले से मल्टीप्लाई. तो 5 × 2 रेशो 6 × 3. दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई. तो 5 × 2 10, 6 3 जा 10. 10 रेशो 18. 10 रेशो 18 मीन्स 10/18 कट बाई 2. 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. आवर आंसर कम 5/9 और 5:9. सो द कंपाउंड रेशो ऑफ बोथ इज 5:9. Similarly, second question 14:9 and 1/7 ratio 1/3. We have to find both the compound ratio. First of all, we change in general form. 7 3 का LCM 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. So it change into 3/3:7. This ratio change into 3:7. And this is first ratio and this is second ratio. तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई, 14 × 3 रेशो 9 × 7. दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई. दूसरा ये 9 है और इसका 7 है, 9 × 7. और पहला यहाँ 14 है और यहाँ 3 है, तो 14 × 3. 14 3 जा 42 एंड 63. 42 रेशो 63 की मीन्स 42/63. आफ्टर रिड्यूसिंग आवर आंसर कम 2/3 और 2:3. इट मीन्स the compound ratio of 14:9 and this come
2:3. Now come to the question number 18. Find A ratio C when A ratio B is equal to 2:5 and B ratio C is equal to 4:7. This is our first question. A ratio B 2:5 और B second 8:20. नहीं, A ratio B is equal to 2:5 and B ratio C is equal to 4:7. So you are seeing here the value of A is 2 and value of B is 5 and value of B here 4 and value of C 7. B की वैल्यू जो है दोनों अलग अलग है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इक्वल बोथ वैल्यू 5 एंड 4 को इक्वल करेंगे. तो 5 और 4 का एलसीएम 20. तो यहाँ भी 20 बनाएंगे और यहाँ भी 20 बनाएंगे. यहाँ 20 कैसे बनेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो A रेशो B इज इक्वल टू 2:5. जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा. तो 4 2 8 रेशो 20. तो A रेशो B चेंज इन 2:5 चेंज इन 8:20. सिमिलरली यहाँ 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35. तो B रेशो C चेंज इन 20:35. जो क्वेश्चन में गिवन था A रेशो B 2:5, तो B चेंज A रेशो B 8:20 एंड B रेशो C 4:7 था, उसको चेंज करके ये आया. बट नाउ यू सी दैट इन प्लेस ऑफ B इट इज A रेशो B, it is B ratio C. You are seeing that in place of B is same number 20. So A ratio C is equal to 8:35. Similarly, second part A ratio B, this after simplifying this we take LCM 6 9:10. It change into 9:10. B ratio C, this after simplifying this come 5:15. So now you seeing A ratio B 9:10, B ratio C 5:15. But here B value is 10 and B value is 5. तो we have to same both. तो 5 और 10 का एलसीएम 10. तो यहाँ 10 बनाना है और यहाँ 10. यहाँ 10 पहले से ही है और यहाँ खाली यहाँ बनाना है. तो A रेशो B 9:10 रहेगा और B रेशो C इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई. तो 2 5 जा 10 और 2 तो इसको भी करना पड़ेगा 30. तो 10:30. तो दिस रेशो चेंज 5:15 10:30. नाउ यू सीइंग B की वैल्यू 10 एंड B की वैल्यू 10. सो द वैल्यू ऑफ B इज सेम ऑन बोथ रेशो. यहाँ भी B की वैल्यू 10 है और यहाँ भी B की वैल्यू 10 है. सो नाउ वी डिसाइड A रेशो C इज इक्वल टू 9:30. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. Find A ratio B ratio C when A ratio B is equal to 4:7 and B ratio C is equal to 5:3. You have to find A ratio B ratio C. A ratio B दिया है और B ratio C दिया है. A ratio B 4:7 and B ratio C 5:3. Again A ratio B की वैल्यू 7 है यहाँ और B की वैल्यू 5 है. तो 7 यहाँ B की वैल्यू 7 है और यहाँ B की वैल्यू 5. तो वी टेक एलसीएम 7 5 जा 35. तो यहाँ भी 35 बनाना है और यहाँ भी 35. तो ये 35 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर. तो 5 से इसको मल्टीप्लाई. तो A रेशो B हो गया 20:35 और यहाँ 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो V रेशो C 35:21. नाउ दिस चेंज इन दिस रेशो एंड दिस चेंज इन दिस रेशो. बट हियर B आर सेम. B की वैल्यू 35 है. तो A रेशो B रेशो C 20:35:21. सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट A रेशो B दिस, B रेशो C दिस. तो A रेशो B फर्स्ट ऑफ ऑल B चेंज इन जनरल फॉर्म. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट चेंज इन जनरल फॉर्म 15:10 and B रेशो C चेंज इन सिंपल फॉर्म 5:12. बट हियर B वैल्यू इज 10 एंड B वैल्यू 5. तो वी हैव टू टेक एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम 10. यहाँ भी 10 बनाना है और यहाँ भी 10. यहाँ पहले से 10 बना है, यहाँ 10 बनाना है. तो A रेशो B 15:10 नो चेंज एंड B रेशो C इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10:24. तो नाउ यू सी दैट द वैल्यू ऑफ B आर सेम ऑन बोथ. देन A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 15:10:24. Now come to the question number 20. Divide 72 in the ratio 5:7:6.
This is very simple question. Number 130. I am doing second part. Number 130, ratio this. So number 130, ratio this. So first of all, we change in general form. We take LCM, and your ratio comes 6:4:3. Sum of ratio 6 plus 4 plus 3 is equal to 13. So first part is equal to first ratio 6, sum of ratio 13. तो 6/13 इंटू 130, क्योंकि 130 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में, तो 6/13 इंटू 130 यूर कम 60. सेकेंड 4/13 इंटू 130 40. थर्ड 3/13 इंटू 130 39. दीज नंबर कम, मतलब फर्स्ट पार्ट 60, सेकेंड 40 एंड थर्ड 39. Divide rupees 1,08,000 between Rama, Anu and Benny in the ratio this. So you can do this question yourself. It is very simple question. इस रुपये को इतने रेशो में बांटना है. Very simple. Similarly, 22 divide rupees 6,600 between A, B, C, and that A has twice as much B and B has half as much at C. You can do. I am doing question number 22 also, rupees 6,600, and question saying, question what is saying, A has twice as much as B. A के पास B का दुगना है and B has half as much as C, और B के पास C का आधा है. तो रुपीज़ टोटल 6,600. लेट B शेयर X, और A के पास B का दुगना है, तो इस मीन्स A शेयर इज इक्वल टू 2X, और C के पास और B के पास C का आधा है. B के पास C का आधा है, तो C के पास 2X होगा, जब तो X होगा, क्योंकि B के पास C का आधा है और A का जो है वो B का डबल है. तो रेशो हो गया A रेशो B रेशो C. तो 2X रेशो X रेशो 2X. ये A है, ये B है, ये C है. X कट तो 2:1:2. This is the ratio of amount A, B and C. Now sum of ratio 2 plus 1 plus 2 is equal to 5. So A का ratio 2, sum of 5, 2/5 into total amount. Your answer come 2,640 rupees. B का ratio 1/5 into this, 1,320, and C got similarly 2,640. It means A and C got same amount, 2,640, and B got half of 2,640 equal to 1,320 rupees. Total amount is 6,600. In what ratio, come to the question number 23, in what ratio should we increase 24 to obtain 32? In what ratio should we increase? When increase, तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे. एंड इन वाट रेशो शुड बी रिड्यूस, जब रिड्यूस होगा तब छोटा नंबर ऊपर एंड बड़ा नंबर नीचे. तो हाउ आई डू दिस क्वेश्चन, इफ देयर इज इंक्रीजिंग देयर देन रेशो 32/24, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, और आफ्टर रिड्यूसिंग 4/3 और 4:3. इट मीन्स इन वाट रेशो पूछा ना, क्या रेशो होगा कि 24 जो है वो 32 हो जाए, तो रेशो होगा 4:3. सेकंड, इफ देयर इज डिक्रीजिंग देन रेशो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, तो 80/100 इज इक्वल टू 4/5 और 4:5. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन 24 का फर्स्ट, रिड्यूस रुपीज़ इतने इन द रेशो, जब रिड्यूस है तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, और इसमें है इंक्रीज इन द रेशो दिस, तो इंक्रीज में बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे. जैसे 105 इंटू 3/5 63 हो गया, क्योंकि छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, रिड्यूस वाला था. और इसमें इंक्रीज है तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे. आफ्टर रिड्यूसिंग आवर आंसर कम 17.5. So it is the end of exercise 1A of ratio and proportion. I think that you understand all question. If you are feeling any mistake in any question, you can discuss me, you can call me. Any question, you can feel problem.
कि सर व्हाट यू डू इन दिस क्वेश्चन, ये कैसे आया, ये कैसे गया, देन यू कैन कॉल मी, यू कैन send message. Thank you very much.